Hi guys. Today what we are going to cover is basically chapter 7 of volume 1 of Economic Survey 2019-20, and in this particular class I will explain the era of the 50 years post the banking nationalization that happened in India starting from 1969, and what has been the overall picture of the public sector banks and what has happened with the influx of the private sector banks. Now, this particular class that I'm going to upload is relevant for the economic students, the BA program students who have the SEC course. However, this is also relevant for students who are appearing for the mains 2020 IS examination. There's definitely going to be a question on this aspect. Why? Because now the government is trying to press on the nationalization or on the denationalization of the banks and kind of privatizing the national held banks because of the kind of losses that these banks have suffered. Or this video that I'm uploading is both in English and Hindi because it serves a much wider audience. So I hope you like this lecture, and if you have any questions you can write down in the comments section. The seventh chapter of volume 1, which is golden jubilee of bank nationalization, taking a stock. So basically we are trying to see that what is the situation of the Indian banking system right now and what can be done to improve it. Okay, so that's what we are going to do. This is economic survey chapter, economic survey 1920, volume 1, chapter 7. So we are going to do a brief portion of it. We are not going to cover the entire reading. हम पूरी reading नहीं पढ़ेंगे. हम सिर्फ एक section पढ़ेंगे, जो introduction section, and basically we'll try to summarize the entire issue. Now, to give you a heads up of what has happened and in the past is that initially जो आपके banks होते थे वो private sector banks होते थे बहुत सारे. So if you see pre-independence banks until 1969, 1969 अगर आप देखो तो ये जो हमारे बैंक्स थे ये मेजरली जो थे ये प्राइवेटली ओन्ड थे. These were privately owned, private ownership थे इनकी. So if you see, let me show you this here, ownership of banks before 1969. ठीक है. So ये basically banks हैं जो basically ये सारे के सारे जो banks थे ये privately owned banks थे. ठीक है. प्राइवेटली बेसिकली मींस कि ये लालाओ वगैरह के बैंक्स थे, लाला थे, बिजनेसमैन थे जिनके बैंक्स थे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे के सारे जो बैंक्स थे ये privately owned banks थे. I will send you a link for this. But then what the Indira Gandhi government did was कि ये जो banks थे ये ज़्यादा contribute नहीं कर रहे थे. ठीक है, ये ज़्यादा contribute नहीं कर रहे थे towards economic development. So see, as you see, there were 361. There was 361 banks and a lot of these banks were losing money. कई लोग बैंक का मतलब लोगों का पैसा लेके भाग जाते थे. तो बहुत सारी सिचुएशन थी. प्लस बहुत सारे जो बैंक्स थे they were not actually they're not actually contributing to the national development in the sense कि वो farmers को लोन नहीं दे रहे थे. वो मेजरली जो लोन दे रहे थे वो प्राइवेट बिजनेसमैन को ही लोन दे रहे थे. तो एक काइंड ऑफ कॉटरी बन गई थी, एक प्राइवेट कॉटरी बन गई थी जिनको पैसा दिया जा रहा था और मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस के पास बैंकिंग सेक्टर का एक्सेस नहीं था. और उनको उनको व्हाट दे हैड टू डू वाज दे बेसिकली हैड टू गो टू द प्राइवेट मनी लेंडर्स व्हिच यूज्ड टू चार्ज अ लॉट ऑफ मनी to for the needs of everyday needs like farming or personal needs. So because of the fact that banking in India before 1969 was majorly privately held and the reach of banking was not much, plus the credit growth was not much. So because of all these reasons and to fulfill the socialistic visions, तो जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा था कि हमारा एक इक्विटेबल बेस होना चाहिए, सोशलिस्टिक आउटलुक होना चाहिए. सो फॉर ऑल दोज रीजंस
what had happened was that these banks were nationalized. So nationalized में basically क्या होता है, गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन देती है कुछ बैंक्स को कि अच्छा ये प्राइवेट ओनर्स को कि आपका कॉम्पनसेशन और ये बैंक अब इंडिया का बैंक हो जाएगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक हो जाएगा. तो इस तरीके से नेशनलाइजेशन दो फेजेस में होता है इंडिया के केस के अंदर. सो इफ यू सी द हिस्ट्री, दिस nationalization happens in two phases, एक 1969 के अंदर और एक 1980 के अंदर. दो बारियों में ये बैंक्स जो है ये नेशनलाइज किए जाते हैं, ठीक है. एंड मेजरली बेसिकली going towards the cause of socialistic values. So socialistic values in our constitution जो है, ठीक है, उसके लिए हमने ये चीज करी, ठीक है, कि रीच बढ़े बैंक्स का, एक्सेस टू क्रेडिट जो लोगों के पास हो. But now that we sit in 2020, so now the issue is that sitting in 2020, what is the state of Indian पब्लिक सेक्टर बैंक्स. और इस स्टेट को देखने के लिए कि ये अच्छा है नहीं अच्छा है या बुरा है, व्हाट वी डू इज वी कंपेयर इट टू द न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ कंपेयर करेंगे एंड इवेंचुअली वी विल फाइंड आउट दैट द स्टेट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इज एक्सट्रीमली पुअर. हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स फॉर एग्जांपल एसबीआई हो गया या जितने भी आप ये बैंक्स देखो, उनका स्टेट जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब है. If you compare it to public sector, हम बहुत सारे metrics के through देखेंगे कि these banks are huge losses, making huge losses. And if you read the recent news, last 2 हफ्तों की अगर आप news देखो तो you will find out that the government is now seriously thinking of privatizing banks. I will send you more articles of this. So the government plans to exit public sector banks after privatization. So basically government is considering to selling all its stake in the public sector banks after they are privatized. ठीक है, तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है अपनी ओनरशिप जो है वो रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, एक गवर्नमेंट के ये रीजन क्या है कि गवर्नमेंट के पास फाइनेंसेस इस कोविड के चक्कर में गवर्नमेंट के पास पैसे कम बचे हैं. दूसरा, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 100% ओनरशिप गवर्नमेंट की नहीं है. ठीक है, काफी कुछ डिसइन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है. ये स्टॉक मार्केट पे है, दैट मींस आप और मैं भी ओनर्स हैं इस बैंक के. तो बेसिकली अगर आप इफ यू टॉक अबाउट पब्लिक सेक्टर बैंक्स देखें, लेट मी शो यू द ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स. ये देखो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग जो है सिर्फ 57% है. पंजाब नेशनल बैंक में इतनी है. ये सारे आपके हमारे पास ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं. 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं. बहुत सारे बैंक्स जो हैं पिछली बार अभी कुछ टाइम पहले मर्ज हुए. फॉर एग्जांपल 2008 में कुछ मर्जर्स हुए थे, फिर 2010 में एक मर्जर हुआ था एंड 2017 में बहुत मेजर मर्जर्स हुए थे जब स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, जितने भी स्टेट बैंक के सारी जो इंडिविजुअल बैंक्स थे उन सबको एक साथ मर्ज करके 2017 में एक सिंगल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया. अपार्ट फ्रॉम दैट क्या हुआ कि विजय बैंक एंड देना बैंक, दो बैंक थे, इनको बैंक ऑफ बड़ौदा में कंसोलिडेट कर दिया गया. देन फर्दर 2019 में भी कंसोलिडेशन हुआ है जब इंडियन बैंक के अंदर इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया गया एंड पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंट बैंक को क्या कहते हैं, यूनाइटेड बैंक को पंजाब नेशनल बैंक के अंदर मर्ज कर दिया गया. ठीक है, ऐसे बहुत सारे मर्जर्स हुए. पहले ये ओवरऑल 27 बैंक्स होते थे, बट वो 27 बैंक्स कम होके वो सिर्फ 12 बैंक्स रह गए. ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक जो एक बेसिकली इंडियन पोस्टल सर्विसेज, इसमें 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप है. ठीक है, तो ये हमारा इंडिया का ओवरऑल बैंकिंग स्ट्रक्चर है. पब्लिक सेक्टर के बैंकिंग का ये स्ट्रक्चर है. Don't worry, I'll attach everything, all of this to your Google Classroom. ठीक है, that we will do. Don't worry about it. Yes. Excuse me, sir. What is the major reason of this consolidation of consolidation, सुदीक्षा, रीजन मेजर कंसोलिडेशन का ये है कि इनके इंडिविजुअली जो छोटे छोटे बैंक्स हैं वो बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग हो रहे थे, इनएफिशिएंट हो रहे थे.
ठीक है, तो उनको इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम इनएफिशिएंट और छोटे छोटे बैंक्स को हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लार्ज बैंक्स बनाएं। इनफैक्ट इन दिस पर्टिकुलर रीडिंग वी विल टॉक अबाउट दैट इंडिया के अंदर लार्ज बैंक्स हैं ही नहीं। अगर आप वर्ल्ड के इफ यू सी द टॉप 100 ग्लोबल बैंक्स, उन टॉप 100 ग्लोबल बैंक्स में सिर्फ एक बैंक है 59th नंबर पे इंडिया का, विच इज एसबीआई, विच इज इन द टॉप 100 बैंक्स इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ बैंक। एंड अगर आप चाइना का कंपेयर करो तो चाइना के पास 18 बैंक हैं ऐसे। चाइना का जो फर्स्ट दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है चाइनीज बैंक है। तो अगर हम देखते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया के टॉप 100 में सिर्फ एक ही बैंक है, तो वो बहुत डिस्प्रपोर्शनेट फिगर है। तो कंट्रीज विच आर हाफ आवर साइज, विच आर 1/6 आवर साइज, उनके भी 3-3, 4-4 बैंक है। तो फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड के आपको बैंक्स मिल जाएंगे, आपको नॉर्वे का बैंक मिल जाएगा, फिनलैंड, बहुत छोटी छोटी कंट्रीज के बहुत सारे बैंक्स हैं। सिंगापुर का बैंक है, इतनी छोटी सी कंट्री है, दिल्ली जितनी बड़ी, दिल्ली से भी छोटी है। तो इतनी छोटी छोटी कंट्रियों के बैंक है और हमारा इतना बड़ा देश है और हमारे पास सिर्फ एक ही बैंक है टॉप 100 के अंदर। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम ये जो छोटे छोटे लॉस मेकिंग बैंक्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आंध्रा बैंक, तो आंध्रा बैंक तो सिर्फ आंध्र प्रदेश का रिप्रेजेंटेटिव बैंक है। सिमिलरली बैंक ऑफ इंदौर, तो वो तो सिर्फ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, इंदौर का रिप्रेजेंटेटिव है। हमें ये छोटे छोटे नीश बैंक्स नहीं चाहिए, हमें लार्ज मेगा बैंक्स चाहिए इंडिया के अंदर। तो economies of scale, there is a concept in economics which is of economies of scale. So economies of scale को reap करने के लिए we have started consolidating these banks. तो छोटे unprofitable banks को larger profitable banks, better banks के साथ merge कर दिया, so that उनके अंदर भी efficiency अच्छी हो जाए। समझ में आया सुदीक्षा? Yes sir, thank you. There is a question on the group. खुशहाली did LPG policies. LPG policies का सिर्फ ये impact हुआ था खुशहाली कि गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, which I was going to tell you that what happened was initially ये जो बैंक्स थे सारे 100% ओन थे, 100% गवर्नमेंट ओन। गवर्नमेंट ने एलपीजी के अंडर गवर्नमेंट ने जब एलपीजी की पॉलिसीज ली तो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन के अंदर आपने डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी शुरू करी और डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू आपने बहुत सारे बैंक्स का शेयर्स बेचे, शेयर सेल करे। बट अभी तक क्या पॉलिसी थी? अभी तक पॉलिसी थी कि आप मिनिमम यू विल होल्ड मिनिमम 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप होगी। ठीक है, अभी तक ये आपकी पॉलिसी थी। बट एज ऑफ अक्टूबर 2020 गवर्नमेंट इज नाउ थिंकिंग कि गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप जो है इस ओनरशिप को डाइल्यूट करे। हो सकता है कंप्लीट सेल। नाउ अब इससे एक इशू और उठता है कि अच्छा अगर ओनरशिप भी अगर वो करती तो अगर ये प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गए तो फिर फार्मर्स को वही बात हो जाएगी कि फार्मर्स को लोन कौन देगा। तो उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशंस भी रखनी पड़ेगी कि अच्छा ठीक है कि अगर आप मेजर ओनर कोई प्राइवेट सेक्टर भी है तो आपको इतना गवर्नमेंट के रूल्स, आरबीआई के रूल्स रेगुलेशंस ये मानने पड़ेंगे सो दैट एक्सेस टू क्रेडिट हो। आई गिव यू वेरी स्मॉल एग्जांपल। ठीक है, नाउ I recently opened a account with SBI, ठीक है, and मैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में इतना ज्यादा इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने एक साल पब्लिक सेक्टर बैंक में भी काम किया। I was in Allahabad Bank for a year before teaching. ठीक है, so there is an exam called IBPS which I cracked. In fact, I got into all सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी बैंक्स हैं मैं सब में मेरा हो गया था। ठीक है, थ्रू एन एग्जाम कॉल्ड IBPS। अभी होता है वो IBPS का एग्जाम, सम ऑफ यू माइट बी इंटरेस्टेड इन दैट। सो IBPS 1 जब सबसे पहले हुआ था 2011 में, तब मैंने दिया था वो एग्जाम। So I got through all banks, but the closest bank that I found was to my home was Allahabad Bank. And when I joined Allahabad Bank, I realized कि अच्छा public sector area के अंदर I'll come to teaching, how I came into teaching. So I worked there for an year or so, and there I realized कि public sector bank के अंदर बहुत major issue है in terms of talent utilization, in terms of corruption, जो bankers का जो corruption है बहुत scale पे है। I don't want to discuss कि corruption किस किस scale पे होता है, you can read it out. So for example, I have asked you to go through
नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है इसकी बैड बिलियनियर्स ऑफ इंडिया। तो बैड बिलियनियर्स का नीरव मोदी का केस देख लो, वो पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ है। विजय माल्या का देख लो, वो पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ है। खैर वो उसका तो सहारा वाला का तो खुद अलग ही पूरा पूरा अपना खुद का स्कैम है। But again, he also owed money to the government, to public sector banks, तो and people in general. So यहाँ पर मेजर इशू इसी चीज का आता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट है। एंड आई वाज टेलिंग यू कि मेरा इलाहाबाद बैंक में एक्सपीरियंस, इनफैक्ट इन इलाहाबाद बैंक आई यूज्ड टू बी कॉल्ड एज केजरीवाल ऑफ द बैंक। व्हाई केजरीवाल ऑफ द बैंक? बिकॉज आई यूज्ड टू रिपोर्ट अ लॉट ऑफ फ्रॉड्स कि अच्छा कि क्रेडिट रेटिंग ठीक नहीं चल रही है, अनड्यू फेवर्स दिए जा रहे हैं लोगों को जस्ट बिकॉज कि आप उनको जानते हो, दिवाली पे गिफ्ट आ रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी तो जो मुझे पसंद नहीं थी। इनफैक्ट आई वाज गिवन अ कपल ऑफ पनिशमेंट पोस्टिंग्स एंड देन आई थॉट कि मे बी इट्स टाइम टू रिजाइन। ठीक है, प्लस उसके अलावा जो सरफेजी वे होता है वो अलग ही बात है। सरफेजी का जो करप्शन है वो अलग ही है। ऑक्शन जब बैंक्स करते हैं तो उसके अंदर भी करप्शन होता है। बट द मेजर इशू इज दैट ऑफ एफिशिएंसी। एज आई वाज टेलिंग यू, मैं पिछले 5 साल से, लास्ट 6 इयर्स व्हेन आई एम विद गार्गी, मैं अपनी सैलरी अपने चेक से लेता था। अब पैंडेमिक आया तो पैंडेमिक की वजह से आई कुड नॉट टेक इट थ्रू द चेक, तो मुझे अकाउंट खुलवाना ही पड़ा एसबीआई में। अब एसबीआई में ऑल्दो the branch manager of SBI and Gargi colleges, she's a very efficient person, but in general जो SBI की workings हैं, जो तरीका है वो कस्टमर फ्रेंडली ही नहीं है। HDFC में मुझे एक इशू होता है तो मुझे 4 कॉल आ जाते हैं वहाँ पर। अब मुझे कार्ड दिया, अब वो कार्ड कैसे यूज करना है, डेबिट कार्ड यूज करना है, वो समझने के बाहर है कि अच्छा इसमें एटीएम में जाके यूज नहीं होगा, कुछ एसएमएस भेजना पड़ेगा तब जाके होगा। इवन इफ मैंने अब जब एक्टिवेट कर लिया है कार्ड अपना, तो उसके बाद इशू क्या आ रहा है कि अगर मैं डेबिट कार्ड से कोई भी ओटीपी करता हूँ तो वो एक्सेस नहीं होता, क्यों? पहले मुझे वेबसाइट पे जाके अपने वो एक्सेस क्लियर करने पड़ेंगे। और मुझे अभी तक ना वेबसाइट का वो मिला है, क्या कहते हैं इसका, इंटरनेट बैंकिंग का अभी तक मुझे एक्सेस मिला है, ना योनो करके इनकी ऐप है उसका एक्सेस मिला है। तो बहुत ज्यादा इश्यूज। और ये इफ यू सी प्राइवेट सेक्टर बैंक, वो आपके पीछे पड़ जाएंगे कि जब तक आपका पूरा स्ट्रीमलाइन नहीं हो जाएगा सारी चीजें। तो ये जो एफिशिएंसी है, और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से, यू कैन आल्सो परहैप्स सी इन योर पर्सनल एक्सपीरियंस की पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर्सेस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अगर आप यही एक ब्रांच में चले जाओ एसबीआई की, एक ब्रांच में चले जाओ किसी और किसी बैंकिंग की, वर्सेस आप कोटक महिंद्रा बैंक यूज कर लो, एचडीएफसी बैंक कर लो, you will feel the difference. In fact, there was a major fraud reported in Gargi College recently, whereby someone had got a file of all the teachers and उनके कार्ड नंबर्स मिल गए थे किसी को। एंड इफ यू सी कि उससे क्या हुआ कि लोग, कोई बंदा फोन कर रहा है गार्गी के टीचरों को उनका सीवीवी शेयर करने के लिए, एंड अगेन पर्सनल इन्फो, उनके पास सारे कार्ड नंबर्स हैं, एंड इफ समवन गिव्स द सीवीवी तो सारी शॉपिंग हो सकती है, पैसा निकल जाएगा आपके अकाउंट से। तो ये जो चीज़ है डेटा सिक्योरिटी की जैसी चीज़ है। अभी डेटा सिक्योरिटी प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर इतनी अच्छी नहीं है। तो दैट 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 इज आल्सो एन इशू। सो ये सारे इश्यूज हमें बताते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक इनएफिशिएंट बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया है। एंड बिकॉज वो इनएफिशिएंट है और लॉस मेकिंग है, इसीलिए अब उस एक बेसिकली एक अपनी बॉडी में कट लगा हुआ है और वहां से ब्लीडिंग हो रही है। द गवर्नमेंट हैज टू थिंक ऑफ कि इस ब्लीडिंग को कैसे कम करे। तो इधर इस ब्लीडिंग के ऊपर सूशर लगाया जाए और उसको सूइन किया जाए, या फिर आप अगर वो हेमरेज ही करे जा रहा है और मतलब आप इफ इट्स अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, तो द बेस्ट ऑप्शन इज टू एम्प्यूटेट इट। एम्प्यूटेशन का यहाँ मतलब है कि उठा के इसको बेच दो, अगर मैं इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर बात करूँ तो आप इसको प्राइवेट सेक्टर को बेच दो, जो बहुत इजीली और अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। सी हाउ पेटीएम हैज बिकम अ ह्यूज हिट। देयर इज अ न्यू ऐप कॉल्ड खाता बुक, वो अपना डिजिटल फिनटेक, इसको बोलते हैं फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म्स। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के अंदर देखो एचडीएफसी, पेटीएम, गूगल पे, ये कितना अच्छा कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे आने वाला है, कितना ईज ऑफ डूइंग क्या कहते हैं हो गया इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग। आपको कैश, मुझे मतलब if you see in the pandemic, I don't even remember when I had to use cash. Everything was so smooth because of the digital payment application. और इसी स्पेस में अब यूपीआई भी आ गया है, भीम जिसको हम बोलते हैं। सो that's where we need to see कि कहाँ पर हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और अभी हमारा कंपैरिजन होगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्राइवेट सेक्टर बैंक से। ठीक है,
So that's our major discussion. I'm just giving you a summary of what we are going to do. Sudiksha, I'll come to teaching, how I came into teaching. By the way, my parents are professors in the university, so it's not as if I am the first generation. My father is a very well-known professor in the university. uh, some of you from commerce, if you have commerce background, तुम्हारा होगा नहीं, बीकॉम तो है नहीं यहाँ पर, would know him. His name is Dr. S.B. Rathore. So he's very famous for income tax lectures on Facebook पे, very very popular guy. My mother is also a professor in Sanskrit, and this is my second mother. My first mother was also a professor in economics. I lost her when I was young. So in all, my family has a 97-year experience in Delhi University. So that's where my venture into teaching comes. Okay. And I'm going to probably take it forward in the next 2 weeks. There is a surprise pending for you, okay, in the teaching sector. Chalo. चलो, so this was our discussion, guys. Any doubts अभी तक कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? I'm not yet even started the reading, but I wanted to lay a platform कि ये हम discussion होगा हमारा. Clear हुआ चीजों से? Yes, sir. ठीक है, चलो. So with this, let's start. So हम कंप्लीट सेल की बात कर रहे हैं, और दूसरा जो बात कर रहे हैं इस रीडिंग के अंदर जो दूसरी हम बात कर रहे हैं, वर्सेस कि इफ यू वांट टू इंक्रीज, हाउ टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, हाउ टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये भी हमें देखना है. और हमारा मेजर इनिशियल जो डिस्कशन रहेगा, हमारा सारा इनिशियल डिस्कशन विल बी ऑन PSBs versus नो प्राइवेट बैंक्स. ठीक है, एक हमारा लाइन ऑफ डिस्कशन ये रहेगा. और PSBs इंडिया वर्सेस वर्ल्ड, क्या हमारी रहेंगी, ये दो हमारे मेजर डिस्कशंस रहेंगे. एंड वेयर इज द अपॉर्चुनिटी. So these are the three questions that we are going to discuss today. Now let's see our reading. So this is our reading. Now if you go through this, you'll realize, मैंने बताया ना आपको कि 50 years anniversary हो चुकी है इंडिया के बैंकिंग नेशनलाइजेशन. क्यों? क्योंकि 1969 में सबसे पहले हुआ था नेशनलाइज. ठीक है, तो 50 years हो गए in 2019. Now we have a huge public sector bank with around 3 lakh in officers. इन officers में मैं भी एक officer होता था एक टाइम पे. ठीक है, and so many clerks, so many public sector. तो public sector bank हमारा बहुत ही बड़ा है. Now we need to assess कि क्या हुआ है. और now then we see that India की economy is the 5th largest economy in the world. But अगर हम 5th largest economy हैं, but at the same point of time India का जो banking structure है, sector जो है, वो disproportionately underdeveloped है for its age. ठीक है, तो for the size of its economy. So basically we can say that Indian economy, Indian banking sector is stunted. ये अगेन एक मेडिकल टर्म है, स्टंटिंग बेसिकली क्या होती है, अगर आपकी हाइट जो होती है वो छोटी रह जाती है फॉर योर एज, तो उसको हम स्टंटिंग बोलते हैं. ठीक है, ये हेल्थ इकोनॉमिक्स में आई टीच की स्टंटिंग, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड वेस्टिंग एज वेल. जब आपका बॉडी वेट जो होता है कम होता है फॉर योर हाइट, दैट इज कॉल्ड वेस्टिंग. ठीक है, तो ये जो स्टंटिंग एंड वेस्टिंग है, ये इंडिया के बैंकिंग स्ट्रक्चर में भी है कि आपकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, जैसे यहाँ पर आपकी एज हो सकता है बहुत अच्छी हो, बट आपकी हाइट ज़्यादा नहीं है. तो सिमिलरली इंडिया का जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो भी, उसमें भी स्टंटिंग है कि उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, बट फॉर इट साइज ऑफ इकोनॉमी उसके जो बैंकिंग सेक्टर है वो इतना बड़ा नहीं है. इंडिया, एज आई मेंशन्ड यू, इंडिया हैज ओनली वन बैंक इन द टॉप 100 ग्लोबल बैंक्स. और टॉप 100 ग्लोबल बैंक्स में वो कंट्रीज के भी एक बैंक है. फॉर एग्जांपल फिनलैंड का भी एक बैंक है, डेनमार्क का भी एक बैंक है, नॉर्वे का भी एक बैंक है, ऑस्ट्रिया का भी एक बैंक है, बेल्जियम का भी एक बैंक है. और ये सारी इकोनॉमीज इंडिया की 111th है, 1/8 है, 1/7 है, 1/6 है. तो ये इंडिया की 1/6, 1/11 कंट्री है
इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, और तब भी उनके भी एक बैंक है और हमारा भी एक ही बैंक है। और स्वीडन जैसी कंट्री और सिंगापुर जैसी कंट्री जो 1/8 साइज है इंडिया की, उनके पास भी 3 बैंक है। तो ये शो करता है कि इंडिया का बैंकिंग स्ट्रक्चर बहुत छोटा है, ठीक है, और इसको हमें एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। और अगर हम देखें पिछले 50 सालों में विच एवर कंट्री हैज ग्रोन वेल, तो हम देखते हैं पिछले 50 साल में सबसे अच्छा किसने किया? चाइना ने किया। China is the country which has reached beyond everyone else in terms of growth। और चाइना ने किस बेसिस पे किया है? चाइना ने ये किया अपने बैंकिंग के बेसिस पे, उसका बैंकिंग सेक्टर भी बहुत अच्छा है। तो बहुत बात होती है चाइना के मैन्युफैक्चरिंग की, बट बहुत कई बार कम अंडरप्लेड बात होती है इंडिया के चाइना के बैंकिंग सेक्टर की। चाइना के बैंक्स का जो सबसे लार्जेस्ट बैंक है वो वर्ल्ड के 5th और 6th लार्जेस्ट बैंक को अगर आप कंबाइन कर दोगे उससे भी बड़ा है। तो इतने बड़े बड़े चाइना के बैंक्स हैं, और चाइना के पास टॉप 100 में 18 बैंक, आई थिंक 18 बैंक्स हैं चाइना के पास। आई विल कंफर्म दिस फिगर टू यू। तो ये एक मेजर इशू है, और इस मेजर इशू में किसको ब्लेम मिलना चाहिए? इस मेजर इशू में दी मेजॉरिटी ऑफ ब्लेम हैज टू गो टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। वी वर डिस्कसिंग कि इंडिया के जो बैंक्स हैं वो बहुत छोटे हैं एज कंपेयर टू से चाइना और यूएस, तो बहुत जापान, तो हमसे बड़ी कंट्रीज हैं, बट अपने साइज के हिसाब से भी हमारी जो कंट्रीज हैं उनके हिसाब से भी बहुत छोटे हैं। हमसे छोटी कंट्रीज के भी हमसे ज्यादा बैंक्स हैं। So that is a major issue. Apart from that, if you see 70%, so who has to take the blame of the entire issue? It has to squarely lie on the public sector banks, because 70% of the market share in the banking is with the public sector banks, and the focus of economic development and Indian economy is on them. So Indian public sector banks are inefficient as compared to its peer groups in terms of private sector banks. And there have been a number of committees to reform these banks. Narsimhan Committee report of 1991 and 1997, the Raghuram Rajan Committee report of 2007, the PJ Nayak Committee of 2014. तो ये बहुत सारे कमिटीज हैं जिन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को इम्प्रूव और उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए बात करी। एंड नाउ द इकोनॉमिक सर्वे सेज दैट विद द कमिंग अप ऑफ फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, कि जहां पर आप फॉर एग्जांपल फ्रॉड डिटेक्शन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर सकते हो, मशीन लर्निंग यूज कर सकते हो। तो आज की डेट में बहुत सारे तरीके आ गए हैं, मॉडल्स आ गए हैं फ्रॉम विच यू कैन एक्चुअली reduce the frauds and जो लोग पैसा वापस नहीं करते वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। So that is just a second. So after that this has become a major issue कि सारे लोग कह रहे हैं कि आप फिनटेक को absorb करो। So some of you if you go into the line of fintech, तो आपको पता चलेगा कि especially economics honors में I deal with this a lot. So where I tell them that there are default models, तो आप banking sector में जाते हो या अगर आप actuarials में जाते हो, so you will be taught certain models in economics so that आप fraud detection कर पाओ, आप ये देख पाओ कि credit card को कौन बिल नहीं देगा, कौन बिल देगा। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अंदर regression analysis आ जाता है, clustering आ जाती है, then you have there's something called random forest. So again all of this is under machine learning. So a lot of this uses ML and AI, artificial intelligence and machine learning. Apart from that you have stock options. स्टॉक ऑप्शन ओनरशिप आप देख सकते हो कि योर पे, अगर आप अच्छा करोगे तो आपके पास कंपनी का स्टॉक मिलेगा तो आपको अगर कंपनी प्रॉफिट करेगी तो आपका भी रिटर्न अच्छा जाएगा। सो ऑल ऑफ दिस शुड बी डन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी नीड टू create a clean banking environment, especially through IBC, insolvency and bankruptcy court. तो अगर कोई बंदा आपको लोन वापस नहीं कर रहा, तो दी बैंक शुड हैव इमीडिएट पावर कि रीस्ट्रक्चर कर पाए लोन या फिर उसके एसेट्स बेच के एकदम से रिकवर कर पाए। सो दिस विल आल्सो हेल्प इन दैट पर्टिकुलर कॉज। बट हमारा मेजर फोकस अभी बैंक्स का कंपैरिजन है। तो एज आई टोल्ड यू कि 70% बैंक्स जो है वो पब्लिक सेक्टर के पास है और वो मेजर डोमिनेंट प्लेयर हैं। And but as we see that they are disproportionate as compared to its size of its economy. ये कैसे दिखता है? ये देखो, इंडिया के पास सिर्फ एक बैंक है टॉप 100 बैंक्स के अंदर। देखो चाइना के पास आई टोल्ड यू ना 18 बैंक्स हैं, यूएस के पास 12 बैंक्स हैं, जापान के पास 8 बैंक्स हैं, इंडिया के पास
सिर्फ एक, इंडिया के पास सिर्फ एक बैंक है, और ये सारी कंट्रीज जो है इंडिया से छोटी हैं, ये सारी कंट्रीज इंडिया से बहुत छोटी हैं। और इंडिया के कंपैरिजन की जो कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल यूके इंडिया के कंपैरिजन की कंट्री है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। फ्रांस यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो यूके कंपैरिजन में तो उसके पास देखो 6 बैंक्स हैं, फ्रांस 6 बैंक्स हैं, ये देखो ये रहा फ्रांस, उसके पास भी 6 बैंक है। तो बेसिकली हमें दिख रहा है कि हमारे जितनी भी कंट्रीज हैं उनके पास भी 6 बैंक है और हमारे पास सिर्फ एक बैंक है, विच इज अ मेजर इशू। नाउ the other thing that you can see is through this regression, इससे घबराओ मत कि ये क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, ये इक्वेशन क्या है, आर स्क्वायर क्या है, ये सब छोड़ दो। नाउ इन प्लेन इंग्लिश, ठीक है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू थिंग्स इन प्लेन इंग्लिश। सी द वर्क ऑफ एन इकोनॉमिस्ट इज टू कॉम्प्लिकेट, किसी भी फील्ड में जितनी टेक्निकलिटी लाओगे उतना आउटसाइडर्स आपकी फील्ड में नहीं आ पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे हार्ट की कंडीशन के बारे में कुछ बोलूंगा, तुम नहीं बता पाओगे क्योंकि यू आर नॉट अ ट्रेन डॉक्टर। तो at times things are जानबूझ के चीजों को कॉम्प्लिकेट किया जाता है सो दैट आउटसाइडर्स जो है उस चीज को समझ ना पाए। तो इकोनॉमिक्स के साथ भी कुछ चीजें हैं। सो रिग्रेशन एनालिसिस लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल है, बहुत सिंपल है, बहुत बहुत लॉजिकल है। सो एज आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। तो नीचे क्या हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, हम नीचे देख रहे हैं जीडीपी। अब ये लॉग जीडीपी छोड़ दो, ये लॉग जीडीपी इसलिए लेते हैं क्योंकि कई बार ग्रोथ रेट को हम देखना चाहते हैं, ठीक है। तो वो जो स्केल होता है वो छोटा हो जाता है अगर आप लॉग ले लेते हो तो एक ये फायदा होता है लॉग लेने का। तो पर नीचे देखो हम जीडीपी है और हम इधर देख रहे हैं नंबर ऑफ बैंक्स। तो बेसिकली आप देख रहे हो कि जब जीडीपी कंट्री की बढ़ती है, ये हमारा जो एक्स पे होता है वो हमारा क्या कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और वाई जो होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो अगर हमारा जीडीपी बढ़ती है तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है नंबर ऑफ बैंक्स पे, ठीक है, नंबर ऑफ बैंक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है जीडीपी बढ़ती है। तो अगर मैं कहूं कि मेरी जीडीपी बढ़े 1 यूनिट से या 1000 या 1 बिलियन डॉलर से, तो कितने बैंक बढ़ेंगे और आगे, ठीक है। तो इंडिया की इकोनॉमी अगर आप जीडीपी उसके नॉमिनल टर्म्स पे लोगे तो इंडिया की जीडीपी इज समवेयर अराउंड 3 ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है। तो 3 ट्रिलियन डॉलर्स के अराउंड इंडिया की जीडीपी है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप वर्ल्ड का देखोगे तो 3 ट्रिलियन डॉलर्स के अराउंड इंडिया के पास, अगर वर्ल्ड का ये एवरेज, दिस इज कॉल्ड द बेस्ट फिट लाइन। ये बेस्ट फिट लाइन बेसिकली बता रही है कि क्या रिलेशन है जीडीपी और बैंक्स के बीच में। तो जैसे जैसे आपकी जीडीपी बढ़ती है वैसे वैसे नंबर ऑफ बैंक्स कंट्रीज के बढ़ते हैं, ठीक है। और ये परफॉर्मेंस है सारी कंट्रीज का। तो अगर आप यूएस का कंपैरिजन देखोगे तो यूएस इस लेवल ऑफ जीडीपी पे है और उसके पास 12 बैंक है, ये 12 है बैंक। सिमिलरली अगर आप, मैंने आपको बताया था ना कि इंडिया का और से क्या कहते हैं यूके का सिमिलर होगा जीडीपी, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये यूके होना चाहिए, ठीक है। तो यूके और इंडिया की सिमिलर जीडीपी है बट उसके पास 6 बैंक्स हैं और हमारे पास सिर्फ एक बैंक है, और ये एवरेज है, बेसिकली। तो आप एवरेज से देखो कितने नीचे हो। इट इज समथिंग लाइक कि आप कह रहे हो कि ये एवरेज रिलेशनशिप है। ऑन एन एवरेज अगर किसी का 9, अगर मैं 3.9 बोल दूं कि उसकी इतनी जीडीपी है, तो एवरेज उसके पास बैंक होने चाहिए 10, ठीक है। बट इंडिया के केस में इंडिया की जीडीपी इतनी है बट उसके पास बैंक इतने ऑन एन एवरेज होने की वजह, एवरेज से देखो कितना ज्यादा है। तो इसको बोलते हैं आउटलायर इकोनॉमिक्स में। इंडिया इज अ नेगेटिव आउटलायर। और देखो चाइना की जीडीपी इतनी है और ऑन एन एवरेज हम रिलेशनशिप से अज्यूम कर रहे हैं कि इतना होना चाहिए आपका नंबर ऑफ बैंक्स, बट नंबर ऑफ बैंक्स देखो उसके कितने ज्यादा हैं एज कंपेयर टू इट्स रिलेटिव टू इट्स जीडीपी। चाइना जो है एक पॉजिटिव आउटलायर है। अगर इसी को मैं डॉर्फिज्म से अगर आप लोगों को समझाऊं तो डॉर्फिज्म से कैसे समझा सकता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ एज और यहाँ लेता हूँ हाइट, तो जैसे जैसे आपकी एक एज के बाद तो हाइट बंद हो जाती है। तो मान लो मैं सिर्फ ले रहा हूँ एज टिल 25, 0 to 25, तो आपकी हाइट जो होगी इस तरीके से आपका एज के साथ आपकी हाइट बढ़ेगी। बट कई लोगों की हाइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बंदा है या आपकी क्लास में अगर कोई शॉर्ट बंदा है जिसकी एज 21 है और उसकी हाइट सिर्फ इतनी है, तो ये बंदा क्या हुआ, ये बंदा शॉर्ट हो गया बेसिकली। दिस गाय इज स्टंटेड
और किसी की नॉर्मल हाइट है और किसी की ज्यादा, सपोज तुम्हारी क्लास में किसी की हाइट है 5'11", तो उसकी एवरेज है, उसकी जो हाइट है वो एवरेज हाइट से, सारी गर्ल्स के कंपैरिजन में एवरेज हाइट से ज्यादा है, शी इज अ पॉजिटिव आउटलायर। समझ में आया गाइस ये कंसेप्ट? आई जस्ट एक्सप्लेन यू ट्रिगोनोमेट्रिक कंसेप्ट Yes, इन sir. इंग्लिश। पक्का गाइस? किसी को ना समझ में आया हो ये? ओके। और ये बेसिकली ये रिग्रेशन लाइन क्या है? ये रिग्रेशन लाइन बेसिकली ये कह रही है कि अगर आप लॉग जीडीपी को 1 यूनिट से बढ़ाओगे, ठीक है, लॉग जीडीपी को 1 यूनिट से बढ़ाओगे तो आपके 6 बैंक्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में अगर किसी की 2.9 है और किसी का 3.9 है तो 1 यूनिट हो गया, 1 लॉग जीडीपी हो गया। तो इसका अगर इतना है तो इसका 6 ज्यादा होगा उससे। तो बेसिकली रिलेशनशिप बताता है कि रिलेशनशिप क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। दैट इज व्हाट द लाइन सेज। नाउ इसी को हमने, अब इसी एनालिसिस को आई एम गोइंग अ लिटिल डीपर। अब मैंने क्या किया, अब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, लॉग जीडीपी लिया मैंने, ठीक है, पर कैपिटा मतलब जीडीपी और नीचे पॉपुलेशन, ठीक है। फिर उसका लॉग ले लिया है। लॉग क्यों? क्योंकि वो स्केल में आ जाता है, एक पर्टिकुलर स्केल में आता है। नहीं तो क्या होगा, एक कंट्री की जीडीपी 13 ट्रिलियन है, एक कंट्री की जीडीपी 50 बिलियन है, तो आप 50 बिलियन से 13 ट्रिलियन के अगर आप वो बनाओगे, लाइन बनाओगे, तो सोचो कितनी लंबी लाइन बन जाएगी। तो इसको एक स्केल में लाने के लिए, सिमिलर स्केल में लाने के लिए हम लॉग कर देते हैं, ठीक है, लॉग वैल्यू ले लेते हैं। ये पर्पस होता है लॉग लेने का। और हम अपना एक्सप्लेन क्या करना चाह रहे हैं, क्रेडिट टू द प्राइवेट सेक्टर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो कितना आपने लोन दिया, बेसिकली क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, क्रेडिट का मतलब हुआ लोन डिस्पर्स किया एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। प्राइवेट सेक्टर को लोन दिया, प्राइवेट सेक्टर मतलब आप मैं को लोन दिए, प्राइवेट सेक्टर लोन डिस्पर्सल एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ठीक है, ये हमने देखा। तो इंडिया के अंदर जो जो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो है प्राइवेट सेक्टर का, वो समवेयर अराउंड 50% है। ये आपको दिख जाएगा 50%। तो अगर इंडिया की जितनी भी जीडीपी है उसका 50% प्राइवेट सेक्टर को एज लोन दिया जाता है। बट अगर हम कंपेयर करें एज अ परसेंटेज ऑफ आवर पर कैपिटा जीडीपी, तो देखो ये कितना कितना कम दे रहा है इंडिया ऑन एन एवरेज। इतनी बड़ी इकोनॉमी को, इतनी बड़ी इकोनॉमी विद इतना बड़ा पर कैपिटा इनकम को यहाँ पर होना चाहिए था, बट हम यहाँ पर हैं। कंपेयर दिस टू से कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम, जो हमारे जितने जिनका जीडीपी है, ठीक है, बट ये पर कैपिटा है, ये आपको यहाँ पर इसलिए दिख रहा है क्योंकि इनकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, ठीक है। तो ब्राजील जो है उसकी भी पर कैपिटा इनकम कम है और वो भी अंडर बैंक है। तो ये बेसिकली दिखा रहा है, ये आपको फिगर क्या दिखा रही है कि इंडिया के अंदर जो पेनिट्रेशन है क्रेडिट का, ज्यादा लोगों को लोन नहीं दिया जा रहा। इतनी इतनी जीडीपी पे, इतनी पर कैपिटा जीडीपी पे एटलीस्ट इतना तो लोन दिया जाना चाहिए था। एटलीस्ट दिस शुड हैव बीन अराउंड 90%। कई कंट्रीज में देखो 100% से भी ज्यादा, मतलब ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन होता है उनकी जीडीपी से भी ज्यादा। ये देखो 160% भी है कई कईयों का। बट इंडिया की साइज ऑफ इकोनॉमी के लिए 90% होना चाहिए था, बट है सिर्फ 50%। तो दैट मीन्स इंडिया के लोग जो है अंडर बैंक्ड है। देयर इज अ ह्यूज अंडर बैंकिंग इन इंडिया। और ये क्लियरली दिखता है इंडिया के अंदर अराउंड 45% लोगों के पास, 40 to 45% लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, नो बैंक अकाउंट। तो ये बेसिकली दिखाता है कि इंडिया के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर का जो पेनिट्रेशन है वो भी कम है, जबकि हमने पब्लिक सेक्टर बैंक इसलिए बनाए थे सो दैट लोगों को लोगों के पास पैसा आ पाए, लोगों को लोन मिल पाए, बट वो ऑब्जेक्टिव भी हमारा पूरा नहीं हो पा रहा है। तो दिस शोज कि इंडिया का बैंकिंग स्ट्रक्चर का जो पेनिट्रेशन है वो कम है और इनएफिशिएंट है, डिस्पाइट वी हैविंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और तीसरी फिगर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो क्या है, लॉग ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। 2018 की हमने पॉपुलेशन देखी और क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर। तो जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, एक्सेस टू क्रेडिट तो कम होगा ही, ऑफ कोर्स कम होगा, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना कम आप क्रेडिट दे पाओगे। बट उसमें भी हम एवरेज से नीचे हैं, उसमें भी हम एवरेज से नीचे हैं।
तो ये बेसिकली हमें ये सारी चीजें दिखा रहा है कि इंडिया के केस के अंदर पीपल आर इंडियाज पॉपुलेशन इज इंडियाज डेमोग्राफी इज अंडर बैंक्ड, ठीक है। अनदर एग्जांपल फॉर दिस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम योर क्लास. हाउ मेनी ऑफ यू हैव टेकन पर्सनल लोन्स? ऑल ऑफ यू आर 18 गाइस? इज एनीवन बिलो 18? नहीं, 18 से कम तो कोई नहीं होगा ना. Second year, no one should be below 18. All of you are above 18. So anyone with a personal credit card, and personal मतलब आप खुद ही यूज करते हो, उसमें पेरेंट्स का कोई रोल नहीं है, ठीक है. And the other thing is कि you have a loan on your head or you have borrowed money, कोई भी नहीं होगा. You compare this to any 20-year-old in US, you will find a stark comparison. 80%, 90% लोगों के पास, बच्चों के पास लोन. इनफैक्ट यूएस के अंदर एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन है, दैट इज स्क्वायरली लोग जो है लोन के बेसिस पे लिव करते हैं. दे टेक अ बैंक लोन for 5 years 10 years and they finance their education because education यूएस के अंदर बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है. तो that is the case, that is primarily what we are talking about. तो यहाँ पर हमारा जो इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग है वो एट 18 इयर्स ऑफ एज नहीं है, जबकि तुम लोग एजुकेटेड हो. वो जो इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग है वो बहुत बाद में आता है, जब आप नौकरी करना शुरू कर देते हो, 23 24 की एज में आता, विच शुड बी लोअर. और स्कीम्स लाइक जनधन योजना की वजह से बैंक अकाउंट्स खुले हैं इंडिया के अंदर, तो बैंकिंग सेक्टर का पेनिट्रेशन काफी इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ जनधन योजना. एंड द गवर्नमेंट इज आल्सो सेइंग कि अच्छा धीरे धीरे हम जो सारा पैसा है वो बैंक अकाउंट्स में डालना शुरू करेंगे रादर दैन आपको. और आज की डेट में देयर इज समथिंग कॉल्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आपके सीधा अकाउंट में पैसा आता है रादर दैन आपको कहीं पे जाना पड़े पैसा लेने के लिए. सो दैट इज उसको भी हम और स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये तीन graphs I wanted to explain you, और इन्हीं तीनों का explanation is mentioned here. See this, now it will be easy. So this I have already told you that India is the 5th largest economy in the world, but State Bank of India is at the 55th rank. And बाकी सारी countries जो हमारे से बहुत छोटी हैं उनके पास भी एक बैंक है. Then figure 2 हमने बात करी dwarfism की कंटेक्स्ट में क्या हमने बात करी कि इंडिया के पास अगर हम फिट करें नंबर ऑफ बैंक्स इन द टॉप ग्लोबल 100 टू द एंड द साइज ऑफ द इकोनॉमी क्लियरली शोज दैट इंडिया इज एन आउटलायर ऑन द नेगेटिव साइड. अब ये समझ में आ जाएगा कि आउटलायर क्यों है. व्हाइल चाइना विद 18 बैंक्स इज एन आउटलायर ऑन द पॉजिटिव साइड, ठीक है. फिगर 3 हमने जो देखा उसमें हमने क्या देखा, द पेनिट्रेशन ऑफ क्रेडिट इन द इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक इज प्लॉटेड अगेंस्ट द जीडीपी पर कैपिटा. तो और क्रेडिट इज प्रोवाइडेड प्राइमरली बाय बैंक्स इन इंडिया, ठीक है. क्रेडिट यूजुअली जो है वो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं. तो ओवरऑल आपको इससे पता चल जाएगा कितना क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है. और ये हमें दिखा रहा है कि इंडिया का जो क्रेडिट क्रिएशन है उसका जो पेनिट्रेशन है बहुत ज्यादा लो है, ठीक है. तो हमारा जो बैंकिंग स्ट्रक्चर का जो रीच है, जो उसके हाथ हैं वो बहुत छोटे हैं. यहाँ तक गाइस समझ में आया? क्लियर? Any doubt till here? Then I'll move to the next topic, reading के अंदर, the next and the final topic. Now, next is basically we need to see कि कितना efficient है हमारा banking structure versus private sector banks. तो अगर हम दो कंपेयर करते हैं, हम न्यू प्राइवेट बैंक्स को कंपेयर करते हैं. ये 1991 के बाद कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आए थे, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं. रिसेंटली जो आया कोटक महिंद्रा बैंक आया, ठीक है. अब पेमेंट बैंक्स भी आ गए, फॉर एग्जांपल पेटीएम इज अ पेमेंट बैंक, एयरटेल मनी है, गूगल पे है, व्हाट्सएप पे है, इनको पेमेंट बैंक्स बोलते हैं. तो बैंक्स भी बहुत तरीके के हो गए हैं, ठीक है. देयर इज समथिंग कॉल्ड पेमेंट बैंक्स, ठीक है. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, जो आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं और पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं. देन यू हैव रूरल डेवलपमेंट RRBs, rural, regional rural banks. Then you have primary credit, primary agriculture societies, primary agriculture credit societies. तो ऐसे बहुत सारे वो हैं हमारे पास बैंकिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं. Then there are mini banks as well, ठीक है. तो not going into detail. Excuse me, sir. Yes.
Sir, what is the difference between all these banks? Now Basically, payment banks. if I what I'll do is I'll send you the difference. ठीक है, मैं Google इस पे classroom पे डाल दूंगा difference. The difference majorly lies in कि permissions किस किस को किस चीज की मिली हुई है. ठीक है, फॉर एग्जांपल पेमेंट बैंक्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिपॉजिट ले सकते हैं, वो चेकबुक नहीं दे सकते. यू वोंट फाइंड कि पेटीएम की अब चेकबुक आ जाए या फिर एयरटेल मनी की चेकबुक आ जाए. तो प्योर जो पेमेंट बैंक है वो ये नहीं कर सकते. जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं वो लेंडिंग एंड डिपॉजिट दोनों कर सकते हैं आराम से. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एनबीएफसीज एज वेल. इंडिया की उसके अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस. आप लोगों ने सुना होगा एक 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 कंपनी मुथूट फाइनेंस, मुथूट गोल्ड फाइनेंस, सुना है इसके बारे में? Yes, sir. ये एनबीएफसीज हैं. या फिर आईएलएनएफएस का पिछले साल स्कैंडल आया था. आईएलएफएस या दीवान बैंकिंग का एक हाउसिंग का एक फाइनेंस एक क्राइसिस आया था. तो ये जो एनबीएफसीज हैं ये बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, पर ये डिपॉजिट ऑर्डिनरीली डिपॉजिट नहीं ले सकते. कुछ डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज भी होते हैं वैसे. तो ये कुछ होते हैं. देन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो होते हैं ये आरबीआई के शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग होते हैं. इनको कुछ रेशोज मेंटेन करनी पड़ती है, सीआरआर एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है. इनको कुछ पैसा अपना पर्टिकुलर सेक्टर्स को लोन देना पड़ता है. फॉर एग्जांपल 18% जो है, अगर इनके पास 100 रुपए पड़े हैं तो उसमें से 18 रुपए इनको एग्रीकल्चर को देना है, 10 रुपए एमएसएमई को देना है, 10 रुपए और किसी को देना है. तो इस तरीके से इनको ये सारी चीजें भी करनी होती है. तो रेगुलेशंस होती हैं. सिमिलरली कुछ रेगुलेशंस रीजनल रूरल बैंक्स के ऊपर होती हैं, कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं. ठीक है, पेमेंट बैंक्स के ऊपर कुछ और रेगुलेशंस होती हैं. तो इस तरीके से बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है बहुत डाइवर्स है. आई विल सेंड यू अ स्मॉल दिस थिंग. सो हियर यू विल गेट सर्टेन इश्यूज ऑफ बैंकिंग. ठीक है, आई विल सेंड यू these links as well. Ronald पे recently presented links हैं इसके बैंकिंग स्ट्रक्चर पे. नहीं तो मैं मेरे पास I have another PPT for the banking structure, वो I'll send it. So this is our structure. बट अगर हम सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, तो अगर आप बैंक का क्रेडिट ग्रोथ देखो कि बैंक कितना लोन दे रहा है, तो ऊपर नीचे तो सबका हुआ है बिकॉज इकोनॉमिक साइकिल के हिसाब से सबका होता है. तो अभी अगर आप 2020 में देखोगे तो इसका भी गिरेगा, इसका भी गिरेगा. बट ओवरऑल इफ यू सी देन जो क्रेडिट क्रिएशन है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, विच इज मच लार्जर देन द क्रेडिट क्रिएशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स. तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो अब ज्यादा लोन नहीं दे रहा है, वो लोन उसने कम देने शुरू कर दी. ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन क्यों कम कर दिया है? क्यों करा है कम? क्योंकि उसके एनपीएस नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत बढ़ गए थे. पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ फ्रॉड्स बहुत सारे हुए. फॉर एग्जांपल नीरव मोदी का एक स्कैम जो मैंने आपको नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए बोला था, प्लस किंगफिशर का अगर आप देखो वाला स्कैम, ऐसे बहुत सारे स्कैम्स और भी हुए हैं. ठीक है, एनर्जी के सेक्टर में, स्टील के सेक्टर में, और वो सारे के सारे स्कैम्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ ज्यादा हैं. फॉर एग्जांपल अगेन आप लोगों ने आम्रपाली हाउसिंग के बारे में सुना होगा या फिर जेपी के बारे में सुना होगा कि इनके प्रोजेक्ट्स जो हैं बंद हो गए थे. वो जो सारे डिस्कवर करे वो सारे एचडीएफसी ने करे था. एचडीएफसी के पास ये लोन लोग फाइनेंसिंग कराने के लिए, एचडीएफसी ने मना कर दिया कि नहीं भैया तुम्हारा जो हमने बुक्स देखी हैं हमें ठीक नहीं लग रही है, और पब्लिक सेक्टर बैंक को लोन दिया जा रहा था और अल्टीमेटली वो लोन चुका नहीं पाए. तो उसकी वजह से जब इनके एनपीए, जब इनके लॉसेस बहुत सारे हो गए, तो उन्होंने एकदम से 2013 के बाद एक्चुअली यहाँ पर भी डिप आता है. यहाँ पर रघुराम राजन केम इनटू द पिक्चर. रघुराम राजन, और रघुराम राजन ने एक्चुअली क्या किया, उन्होंने कहा कि एक चीज निकालो, एसेट क्वालिटी रिव्यू. सारे बैंक्स अपने सारे के सारे एसेट्स देखो और देखो कि कौन से एसेट और कौन सा एसेट आपका लाइबिलिटी आपका जो है वो जीरो होना शुरू हो गया. इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट. तो रघुराम राजन ने सबकी बुक्स को क्लियर करवाया और देखा तो पता चला कि बहुत सारा एनपीए पड़ा हुआ है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा है वहां पर और इनएफिशिएंसीज बहुत ज्यादा हैं. और इसीलिए जब एकदम से मार्केट में आया कि अच्छा पब्लिक सेक्टर बैंक्स का तो ये इतने लोग चूना लगा के जा रहे हैं, तो उन्होंने लोन देना ही कम कर दिया. तो इसीलिए आपका क्रेडिट ग्रोथ जो है वो कम हो रहा है. So if you see the credit growth new public sector banks की 15 to 29% के बीच में, whereas the public sector banks का जो growth है वो बहुत कम है. और उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी गिर गई, क्योंकि अगेन अगर आप लोन नहीं दोगे, अगर लोन ज्यादा नहीं होंगे तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं होगा. अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो अल्टीमेटली जीडीपी कम हो जाएगा.
क्योंकि जीडीपी का क्या होता है, जीडीपी तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड है, और वो कहाँ से आएगी, वो इन्वेस्टमेंट से आएगी। और अगर अगर बैंक लोन नहीं देंगे तो वो इन्वेस्ट काम कैसे करेंगे, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कैसे करेगा, और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा तो जीडीपी नहीं होगी। तो जो एनेमिक क्रेडिट ग्रोथ है उसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी है जो काफी पुल बैक हुआ है। And in the last 50 years we have seen that all the major banks, जो भी कंट्री है जो बड़ी हुई है, it has been on the basis of its banking structure, चाहे वो यूएस का सिस्टम हो, चाहे वो जापान का सिस्टम हो, चाहे वो चाइना का सिस्टम हो। As I told you, चाइना का इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना is nearly 2 times as big as the 5th और the 6th बैंक। तो इतना बड़ा है हमारे बैंक्स हैं चाइना के एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया के तो सिर्फ एक ही बैंक है, वो भी 55th नंबर पे है। और इसका मेजर जो उस पर इम्प्लीकेशन है वो पब्लिक सेक्टर बैंक पे क्यों है, क्योंकि 70% जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो 70% ओनरशिप जो है पूरी बैंकिंग स्ट्रक्चर की वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास है। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं अगर 2019 में देखो तो उनका क्यूमुलेटिव लॉस जो था वो 66,000 करोड़ था। ठीक है, सो 66,000 करोड़ का हमें लॉस हुआ है इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर जस्ट बिकॉज ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो 66,000 crores, if you see, if you divide it by say 75, so 880 um, 66,000 crores 8.8, so somewhere around 8.8 बिलियन डॉलर्स का हमें लॉस हुआ है सिर्फ बिकॉज ऑफ दिस 8.8। अगर मैं 75 की वो लेता हूँ 8.8 बिलियन डॉलर्स का। ठीक है, तो ये हमारा इतना तो हम लॉस करके चल रहे हैं, और विच इज ट्वाइस द बजट दैट वाज एलोकेटेड फॉर एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन को 40,000 करोड़ दिया है और आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे जो लुटा रहे हो वो 8.8, एजुकेशन पे 4.4 या 4 बिलियन डॉलर्स खर्च कर रहे हो, और इधर आप 8.8 बिलियन डॉलर्स का लॉस कर रहे हो। और 85% ऑफ जो फ्रॉड हुआ है बैंक्स के साथ ऑफ देयर ग्रॉस परफॉर्मिंग एसेट इज विद द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो 85% फ्रॉड इनके साथ है, which is equivalent to 7.4 crores। ठीक है, which is basically 100 billion dollars। 100 billion dollars का आपका अप्रोक्सीमेटली क्या कहते हैं आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास। तो और which is much more than which is 150% of total infrastructure जो आप खर्च करते हैं। तो these figures show you कि पब्लिक सेक्टर बैंक कितनी बड़ा लॉस मेकिंग एंटिटी बना हुआ है इंडिया के अंदर, और उसको टर्न अराउंड करना इज वेरी इंपेरेटिव फॉर अस। और उसका एक और तरीका देखने का वो है रिटर्न्स टू इक्विटी। रिटर्न टू इक्विटी, अगर आप रिटर्न टू इक्विटी देखते हो तो अगर 1 रुपया इन्वेस्ट किया जाए तो कितने पैसे आपको वापस मिल रहे हैं। सपोज आप एक शेयर खरीद लो किसी कंपनी में, तो आपको कितने पैसे वापस मिले, विच इट विल बी कॉल्ड एज रिटर्न टू इक्विटी। इट्स अ अकाउंटिंग कंसेप्ट। ठीक है, वेरी सिंपली एक्सप्लेन, अगर मैं 1 रुपया किसी चीज में लगाता हूं तो मुझे वापसी कितना मिलेगा, दैट इज बेसिकली योर रिटर्न्स टू इक्विटी। तो अगर एज अ टैक्स पेयर अगर मैं 1 रुपया पब्लिक सेक्टर बैंक में लगाता हूं, इफ आई पुट 1 rupee इन द पब्लिक सेक्टर बैंक, आई गेट ओनली 23 पैसा back. Sorry, the government loses 23 paisa. The government loses, yes. So the loss is of 23 paisa. Okay. तो that is the extent कि मुझे प्रॉफिट नहीं, मुझे लॉस हो रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक में पैसा लगाने की वजह से। ठीक है, तभी तो आपको लॉस दिख रहा है यहाँ पर। And if you see there's another indicator called market to book ratio, which is basically a ratio, which is again I don't want to get into the technicality of it, ठीक है, but it basically shows कि बैंक का गवर्नेंस कितना है, कितना अच्छा है, और वो हमारा 0.8 है एज कम्पेयर टू अगर पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का देखो तो 4 है। तो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा गवर्नेंस है आपका। तो वो ये भी आपको बेसिकली मार्केट वैल्यूएशन जो है बेसिकली दिखाता है कि आपका बुक का प्रॉफिट्स कितना है, बुक वैल्यू आपकी कितनी है। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि टोटल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ योर बुक्स वर्सेस मार्केट में आपका शेयर कितने का है। ठीक है,
इसको बोलते हैं मार्केट वैल्यूएशन। बहुत रफ टर्म्स में बता। फॉर एग्जाम्पल यू विल फाइंड मार्केट वैल्यूएशन, जब हम कहते हैं ना कि अमेजॉन, हमें अगर आपने रिसेंटली पढ़ा हो तो अमेजॉन की मार्केट वैल्यूएशन $2 ट्रिलियन हो चुकी है। इट इज ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द साइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, सिर्फ अमेजॉन की वैल्यूएशन। एप्पल की वैल्यूएशन अराउंड $2 ट्रिलियन। एप्पल और अमेजॉन को मिला लोगे तो इंडिया की इकोनॉमी से बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है मार्केट वैल्यूएशन है कि मार्केट का जो स्टॉक का प्राइस आपका क्या है, तो नंबर प्राइस इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स, तो वो आपको मार्केट वैल्यूएशन दे देता है। तो जितनी ज्यादा होगी मार्केट वैल्यूएशन अपॉन बुक वैल्यू, जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, जितना ज्यादा ग्रेटर देन 1 होगा, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हो गया कि मार्केट को पता है कि आप बहुत अच्छी और बहुत एफिशिएंट फर्म हो। ठीक है, तो जो आपके रिफ्लेक्टिव प्रॉफिट्स हैं, जो आपकी रिफ्लेक्टिव बुक वैल्यू है, आपकी वैल्यू उससे मच मच बेटर है, मच ज्यादा है। और पब्लिक सेक्टर बैंक के केस में हम देखते हैं 0.8 और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में 4 है। ठीक है, you can see this, I can show you a thing. Hold on. Market to book ratio of 4.36। तो ये जो वो है, ये बेसिकली हमें बता रहा है, देखो, प्राइस टू बुक रेशियो डेफिनेशन। प्राइस टू बुक इज द वैल्यूएशन रेशियो व्हिच मेजर्स द स्टॉक प्राइस वर्सेस द बुक वैल्यू पर शेयर। ठीक है, बुक वैल्यू इज एसेंशियली द टैंजिबल अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ द फर्म कंपेयर्ड टू इट्स मार्केट वैल्यू दैट इज शोन। ठीक है, दैट इज द एक्सटेंट। और देखो ये जो है कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, और यही अगर आप चेक करो, अगर समझ में आया गाइस, दिस इज अगेन टेक्निकल, आई एम गेटिंग इनटू फिनटेक अगेन, फाइनेंशियल वर्ल्ड में, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, टेक्निकल चीज मैं समझा रहा हूँ, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन अ वेरी नॉन टेक्निकल वे। ठीक है, समझ में आया? टू coming to your issue of money basically spent, and if you see in 2019 the government spent 4,30,000 crore rupees was invested in the public sector banks, but overall the government lost basically 23 paisa on every rupee that was invested, versus every rupee invested in the new private sector bank, अगर आप इन्वेस्ट करते तो you would have gained 9.6 पैसा। तो this is the difference of efficiency। तो basically ये efficiency दिखा रहा है, efficiency of Indian public sector banks versus private sector banks of India। ठीक है, और यहीं से आपको गेन दिख रहा है कि आप कितना गेन कर सकते हो अगर आप इस बेसिकली यूनिट को, अगर आपको ये दिख रहा है 0.8 है और वो 4 है, तो अगर आप इसको सिर्फ डबल कर दो, इसको डबल कर दो 1.6 तक ले जाओ, तो भी आपको बहुत पैसा बच जाएगा। तो यही बेसिकली डेफिनेशन है, व्हाट इफ द मार्केट टू बुक रेशियो ऑफ ईच पब्लिक सेक्टर बैंक डबल्ड। अगर आप सिर्फ डबल कर दोगे तो जो गवर्नमेंट को गेन होगा वो 5.2 लाख करोड़ का होगा। ठीक है, which is again somewhere around $70 billion का गवर्नमेंट को गेन हो जाएगा, which is much more than डिसइन्वेस्टमेंट से जो आप पैसा रेज करने की कोशिश कर रहे हो। और इसको अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के जितना ले जाओगे तो और ज्यादा पैसा इंक्रीज हो जाएगा। सो ऑल इन ऑल व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज दैट the difference between the public sector banks and the new private sector banks comes from the efficiency in those banks। और हमें clearly हमें दिख रहा है कि public sector banks बहुत ज्यादा inefficient है। And what we need to do is basically we need to increase the efficiency। How do we need to increase the efficiency? Because we have a positive demographic dividend, तो हम उसको यूज करेंगे। नए जो हमारे जो जनरेशन आ रही है उनको बोलेंगे कि वो बैंकिंग करें, ऐसा ना हो कि वो हमारे पेरेंट्स जनरेशन की तरह बैंकिंग के तरफ अलूफ रह जाए। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करेंगे जैम का, विच जैम इज व्हाट, जनधन आधार मोबिलिटी। ठीक है, तो जनधन अकाउंट्स को यूज करेंगे, आधार कार्ड को लिंक करेंगे एंड मोबाइल फोन्स को लिंक करेंगे, सो दैट हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन जो 100% हो जाए। ठीक है, एंड हम जीएसटी नेटवर्क को भी यूज करेंगे सो दैट जो भी आपकी टैक्सेशन है उसको भी हम इजी कर पाए। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू फॉर इंडिया टू बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। और आपको ये रीडिंग सिर्फ यहाँ तक ही पढ़नी है। दिस इज ऑल दैट यू नीड।